اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، عید کی 3 دن کی چھٹیوں کے بعد آج ہم اپنے آفس میں آئے ہیں اور آج سے خبریں باقاعدہ شروع کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام کو دل کے گہرائیوں سے عید کی مبارکبادیاں پیش کرتے، دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پریوار کو سچی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والے وائرس سے اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، حلال رزق میں ہماری دعائیں، اللہ خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ حرام لقموں سے آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارکباد۔ چلیے آئیے، عید کی خوشیوں کے ساتھ ہی ایک بڑی خوشی کی خبر یہ آ گئی ہے کہ پاکستان کا ایک مردود جو پاکستان سے جان بچاتے ہوئے یہاں پر آ گیا تھا، ہندوستان میں رہ رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تسلیم نسرین جیسوں سے لے کر تاریخ فتح تک ایسے جتنے شیطان ہیں سب کو ہمارا ملک سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بولتے رہیں اور یہ خوش ہوتے رہیں اور ان کی سیاست چلتی رہے۔ تو خیر، خوشی کی خبر یہ آ گئی ہے کہ پاکستانی ایک بہروپیہ، ایک ملعون مردود طارق فتح، جی ہاں، آخر مر گیا۔ ٹویٹر پر اوم شانتی اوم کی شردھانجلی بھی اسے پیش کی گئی اور وہ اسی کے لائق تھا۔ اسلام اور مسلمان، 3 طلاق اور تعدد ازدواج اور برقعے کے خلاف ہر وقت زہر اور اپنے منہ سے گندگی اور ٹوائلٹ اگلنے والا طارق فتح آخر چلا گیا، اور کہتا تھا کہ یہودی میرے دشمن کا نہیں، یہودی میرے دشمن نہیں کا مصنف، اور رام مندر کی تعمیر پر خوشی ظاہر کرنے والا، بابر اور دیگر مغل اور مسلم حکمرانوں کو ظالم اور لٹیرا بتانے والا، RSS اور بی جے پی کو خوش کرنے والا، گستاخ، ملعون، مردود، مرتد آخر چلا گیا۔ پورے ہندوتوادی ٹولے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور اہل ایمان اور اہل اسلام ایک شیطان، ایک مردود کے جانے پر خوش ہیں۔ گزشتہ لمبے عرصے سے یہ مردود کینسر جیسی تکلیف دینے والی خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، یعنی اللہ نے اتنی آسانی سے نہیں لیا بلکہ دنیا میں بھی خوب تڑپایا۔ خیر، طارق فتح 73 سال کی عمر میں مر گیا اور ہمارے ملک کو پاک کر گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک میں ہندوتوادی بھگوا ٹولہ بڑا گودی میں اس کو بٹھاتا تھا اور گودی میڈیا تو اس سے ہاتھوں ہاتھ لیا کرتا تھا۔ ابھی نمبر 1 کا جو چینل ہے دلالی میں، اس نے باقاعدہ اس کا پرانا ایک شو بھی بتایا سوگ میں، یعنی گویا کہ اس کی تعریف میں۔ تو گودی میڈیا کے یہ بہت کام آتا تھا کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا، جس سے گودی میڈیا کو دھندا ملتا تھا۔ آئیے دن ہمارے ملک کے گرہ منتری
लोग उन्हें गिरा हुआ मंत्री कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कहना चाहिए। कमेंट में लोगों ने, कल मैंने जब उनकी वीडियो डाला तो किसी ने गृह मंत्री की बजाय लिखा कि वो गिरा हुआ मंत्री है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बाकायदा गृह मंत्री है। ये अलग बात है कि गिरी हुई बातें करते हैं, घटिया और बिल्कुल नीच किस्म की बातें करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। और मैंने कल उनकी वीडियो लगाया था कि इतने बड़े पद पर बैठकर ये शख्स मुसलमानों से, एक ख़ास समाज से इतनी नफरत की बात कर रहा है, लेकिन क्यों? सिर्फ कुर्सी की लालच, सत्ता की लालच बिल्कुल घटिया से घटिया लेवल पर पहुंचा देती है। तो गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना पहुंचे हैं, कर्नाटक पहुंचे हैं, और बाकायदा अब वहाँ पर इलेक्शन की तैयारी है। तो वहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री ने पहुँचकर बड़ा गिरा हुआ बयान दिया और ये कहा कि हुकूमत बनी तो तेलंगाना में मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें नोचते हुए ये कहा कि वज़ीर दाखिला जी, कभी महंगाई और बेरोजगारी पर भी तो बात करो, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर ये बात नहीं कर सकते, इसलिए गिरी हुई बातों के जरिए से सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करके ही कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। वो जो अंग्रेज़ों की नापाक और घटिया पॉलिसी थी उस ज़माने में, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और हुकूमत करो, तो वही नीच हरकत करके ही बीजेपी तेलंगाना और कर्नाटक जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा, इसी नीच हरकत के ज़रिए से लड़ाओ और राजनीति करो, हुकूमत करो वाला फार्मूला अपना कर बाकायदा माहौल को ख़राब करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आइए दिन महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी, आप जानते हैं कि अभी फिलहाल ज़बरदस्त सियासी हलचल महाराष्ट्र में मची हुई है, और कभी भी ये कठपुतली बीजेपी और आरएसएस की सरकार, शिंदे फडणवीस सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन खैर, शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो हैं और बड़े कदावर नेता है। शरद पवार ने इस वक्त सियासी बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी के मुस्तकबिल, महाविकास अघाड़ी के फ्यूचर से मुतालिक मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। आइए मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, एक ईसाई राहिब, क्रिश्चियन ईसाई राहिब को हिंदू भगवा तंजीमों के अराकीन ने खूब पिटाई की। देवी इल्ज़ाम है कि देवी देवताओं की तस्वीरों पर ईसाई मज़हब की तस्वीर लगा दी, और ये भी इल्ज़ाम है कि इलाज के बहाने ईसाइयत की तबलीग करता था। यानी इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ अक़लियतों में मुसलमान नहीं, बल्कि जितनी अक़लियतें हैं, चाहे वो फिर क्रिश्चन हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, ये सब गैर महफूज है। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िला से मज़हब की मुबैना तब्दीली से मुताल्लिक मामला सामने आया है। इस मौके पर हिंदू तंजीमों के कुछ ओहदेदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया और एक ईसाई पादरी को ज़बरदस्त अंदाज में पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा मामला हनुमानतल थाना इलाके के प्रेम सागर का बताया जा रहा है, जहां तब्दीली मजहब की इत्तला पर एक वकील के घर पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। जैसे विश्व हिंदू सेवा परिषद और विश्व हिंदू महासंघ के कारकुनान वकील के घर पहुंचे और हंगामा किया, और फिर ईसाई बिरादरी के पैरोकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी खैर, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अब अक़लियतें सिर्फ मुसलमान नहीं, जितनी माइनॉरिटीज़ है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जिस तरीके से मुल्क का सत्यानाश कर दिया और धर्म के अंदर मुल्क को बांट दिया और अंग्रेजों वाली घटिया और नीच हरकत पूरे मुल्क में फैला दी कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो, सत्ता हासिल करो, इससे अब हिंदू भी बड़े परेशान हो चुके हैं। इसलिए जितनी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी, जाहिर बात है कोई पार्टी मुसलमान की तो है नहीं। जी हाँ, तो अब जितनी भी अपोजिशन पार्टियां है ना, गोया कि हिंदू भाई, वो बाकायदा अब बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने में हम सब एक थे।
जी हाँ, 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन इत्तेहाद की एक और कोशिश सामने आ रही है। नीतीश और तेजस्वी की कोलकाता में ममता दीदी से मुलाकात हुई और लखनऊ में अखिलेश के साथ रात का खाना हुआ और जल्द ही अब पटना में अपोजिशन का इज्तिमा होगा, यानी तमाम अपोजिशन पार्टियां पटना में जमा होगी और तमाम का एक ही मकसद है कि 2024 के इलेक्शन में इस प्यारे मुल्क को अंग्रेजों वाली नापाक साजिश जो बीजेपी इख्तियार किए हुए हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर मुल्क में राज करना चाहती है, बस उसी अंग्रेजों वाली नापाक पॉलिसी से इस मुल्क को बचाने के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियां एक होती हुई नजर आ रही है और जल्दी रियासत बिहार के पटना में अपोजिशन पार्टियों का एक बड़ा इजलास, एक बड़ी सभा और बैठक होगी। आइए नाज़रीन, अतीक और अशरफ जिन दोनों भाइयों को गोया के बिल्कुल भगवा आतंकवादियों ने मारा और भगवा आतंकवादियों के मारने पर बाकायदा मजहबी जय श्री राम के नारे फिर भगवा टोले ने लगाए, यानी इस मुल्क में आप समझ सकते हैं कि कानून और लॉ और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यूपी की पुलिस बिल्कुल तमाशाई बनी रही, बल्कि यूं समझिए कि खामोश तमाशाई बनकर भगवा आतंकवादियों को शाबाशी देते हुए नजर आई। लेकिन पूरे मुल्क और बाहर मुल्कों ने बाकायदा हिंदुस्तान की पुलिस पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ पर थूका कि यह अच्छी हरकत नहीं हुई है जब पुलिस की हिरासत में कोई महफूज नहीं है और अगर इनकाउंटर राज और ठोक दो राज और मिट्टी में मिला दो वाले राज के जरिए से अगर हुकूमत चलाई जाएगी तो फिर मुल्क में अदालतों को बंद कर दिया जाए और सारे पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। खैर, अतीक और अशरफ कत्ल केस को लेकर योगी सरकार और ख़ासतौर से बीजेपी सरकार तकलीफ़ों में आ चुकी है और अब अतीक अशरफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत 28 अप्रैल को होंगी। रिटायर्ड जज की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अतीक के करबला वाक़े दफ्तर में मिले खून के निशान और अब अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता को भी दिल्ली में बड़ी तेजी से तलाश किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। नागपुर में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसके बाद आग भड़क उठी और 4 मजदूरों के जान बहक होने की, मरने की खबरें आ रही है। डिप्टी वजीर आला ने इजहार ताज़ियत पेश किया है, श्रद्धांजलि पेश की है। नागपुर की एक फैक्ट्री में धमाके के बाद आग भड़क उठी और 3 मजदूर उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं जबकि 4 की मौत की इत्तला आ रही है। इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के एक्स सीएम हरदिल अजीज शहीद लाडले सीएम उद्धव जी ठाकरे हमारे अपने जिला जलगांव आए थे। जलगांव में उन्होंने जमकर गद्दारों पर बरसात की। जी हाँ, गद्दारों की पोल खोली, बंडखोरों की पोल खोली और सिर्फ यही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व गाय और गौमूत्र तक महदूद है, यानी बीजेपी का हिंदुत्व गाय और गौमूत्र तक महदूद है, यानी इसी से सिर्फ वो फायदा उठाते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन, उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र में इलेक्शन हो सकते हैं और संजय राउत ने भी दावा किया था कि 15 से 20 दिनों में महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है और फिर इनका हाल धोबी के कुत्ता जो कहावत है वैसी हो सकती है। तो खैर, संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे का ये जो बयान आया है इससे महाराष्ट्र का सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा की दरखास्त पर अर्जी गुजारों को हलफनामा जमा करने का आदेश हुक्म जारी कर दिया। किस बात पर, मैं आपको बताऊं कि निकाह, हलाला और कसरत इज़्दिवाज, इस मामले को आप जानते हैं कि मुल्क में उठाया गया और मुल्क में धीरे धीरे ऐसे एक मामले उठाकर सिर्फ यही नीच हरकतें की जाएगी कि बस इसी में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा सके और असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि पुलवामा का मामला उठ रहा था सत्यपाल मलिक के जरिए से कि अतीक और अशरफ का इनकाउंटर करवा दिया गया और अपनी रखेल मीडिया को उधर लगा दिया गया ताकि लोगों का जहन पुलवामा से हटकर उधर लग जाए। तो ऐसे ही निकाह, हलाला और इस्लामी जितने पर्सनल लॉ है उसको छेड़खानी करके बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। तो निकाह, हलाला और कसरत इज़्दिवाज पर भी एक अर्जी दाखिल की गई थी, इसके खिलाफ, शरीयत के इस कानून के खिलाफ। तो अब खबरें आ रही है कि छुट्टियों के बाद इस पर हतमी बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा की दरखास्त पर अर्जी गुजारों को हलफनामा जमा करने का हुक्म जारी कर दिया है।
आइए दिन बड़ी खबर आ रही है रियासत गुजरात के अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि हाई कोर्ट ने गुजरात में स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने पर गुजरात हुकूमत से जवाब मांगा है। गुजरात के प्राइमरी स्कूलों में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक यानी 6th to 12th तक के स्टूडेंट्स को हिंदू धर्म की किताब भगवत गीता पढ़ाए जाने के मामले पर हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया। गुजरात में स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने के मामले पर हाई कोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से जवाब मांगा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।